Okay, so good morning, everyone. First of all, myself Vinayak Sudhir Thul, and today we will be starting with this session first. So this is our first session. I apologize because actually I cannot switch on my camera because I have a camera issues actually. For 2 to 3 days, the network issues are also happening, and that's why I'm. It's getting late to start with the session. Okay, but yes, right now we can start with the session. um, Even though if you're not able to join for the session, I'm going to upload it on the YouTube so that you will have access to this session. Okay, so better go to the YouTube. Okay, in case if you really wanted to join this thing, because I told you we have a two free sessions. Okay, the name for the this tutorial, it's like a English excellency. Okay, there is a purpose behind giving a this name to this session, because majorly people they used to conduct the lectures like English speaking course or communication skills. Yeah, but this is deliberately English excellency course because whenever we used to talk in the English, I think most of the time we use wrong English. Most of the time we don't know what kind of grammatical mistakes we are doing, and this session is also going to helpful for those who are preparing for any of the competitive exams. Okay, because we will try to cover up each and every session. We will try to cover up maximum possible thing here. Okay, so without wasting time, let's start with the lecture. I will share my screen first. Basically, uh, talking about myself, I have done my MCom from the commerce, and I'm working as an assistant professor with the Somaya College. Okay, so means just in case if you wanted to know what kind of qualifications I have, because most of the time the people used to conduct such a sessions and they do not have enough knowledge about it. Okay, so I hope screen is visible to you. I have shared the screen. So today we will be covering the basic things. uh, I will try to cover up maximum possible things. I will try to complete the maximum possible things, because this session or this tutorial is not going to last long for the more than 2 months. Maximum for the 2 months we will cover it, and after the 2 months we will obviously start with the new tutorials. Okay, but so in these 2 months, or you can say 8 Sundays we have. Okay, we are going to cover the use of articles, tenses, degree, question tag. So primary focus will be on covering these things, and obviously if I get any of the extra time, obviously we will cover this thing. In case of vocabulary, formation of noun, adjective, verb, adverb, synonyms, antonyms, idioms, phrases, proverbs. Remember, these are the basic things which we always use in our daily life. Okay. Specifically for those who are preparing for MPSC or who are preparing for any of the government exam or any of the banking exam, these synonyms, antonyms, they are going to useful for them. Even though in case of grammar, use of articles, tenses, degree, question tag, even though the conditional statement is also there, these things are going to be helpful. Okay, then we will also be doing the paragraph writing. Okay, so I think actually I have mistakenly written a paragraph. I have written it as a paragraph. Sorry, it should be the paragraph reading, then vocabulary from the para. Okay, etc. These things we are going to cover. So first of all, let's talk about some of the basic things. Yeah, you all of you guys are very much aware about the things. Means obviously we are not going to conduct the basic lectures. Okay, we're not going to cover up the basic things, because we all know about the basics. We all know what kind of letters, um, that there are 26 letters in these things and all those stuff. So ये सारी चीजें हम लोग को मालूम है. I am going to cover this session in the two languages basically. The first one obviously it will be the English one, and second one will be the Hindi one. Okay. Um,
So let's talk about the basic things. So we all know about the basic things, meaning. So what is the meaning of English? Okay, so basically आप बोलोगे this is like a language. So yeah, it is a language only, but it has a specific phrase that is a lingua franca of the world. Okay, so lingua franca of the world, it means it is a language of communication of the world. Lingua, that is a language. Communication, that is sorry, lingua, it's like a language. Franca, it means communication of the world. Because English is such a language which is used in the whole world. It is used at an international level. Even though you will find that a lot of countries, they are using their own languages for their internal workings. Like a Spain, we have, they mostly they use Spanish language or their official language for any of the communication within a country. But in case of any communication which is done with the other countries, or in case of any external communication, or in case of any international affairs, you always have to use the English language as a communication. And that is why the English has become a very much important language. And in our India now, English, it's like become a prestigious subject, right? If you don't know how to speak English, or if you're not able to speak English, then people will tease you, people will make a fun of you. Okay. So it is expected that you should know the basic things. It's not like that you should be very much fluent in these things. Okay, but at least you can speak English. At least you can convey your message to other person. I think that is the most important thing. That's why we are talking it as an English excellency, because right now in these sessions for 2 months, obviously, right now we will not be covering the speaking part. Means obviously, by reading the para, I will give you the certain inputs, or I will give you the certain work to do, so that your speaking will be improvised. Okay, but that will be totally free of cost, because that will be totally collateral to this session. So your English will be improved, obviously your speaking confidence will come, but yes, you have to do it at your home. Okay, like reading a para or making a vocabulary out of it, because obviously we are going to cover the para over here. I will explain a certain para, or I will explain a certain editorial for you, and then obviously you will be able to read those things. But yeah, some practice is required from your point of view. Most of the guys may be working with a certain company, or maybe working with a certain organization, or maybe they are doing a business. I know it's quite difficult to take out the time out of the schedule. And if it is a Sunday, then obviously we all have that image in the mind, like okay, on a Sunday it's like a rest day for every one of us. But I think 2 hours from each Sunday, I think we can take out for our benefits, because this session is going to useful for you. I hope you will like it. I hope you will join for it. Okay, and let's start. I don't think there is time to waste it, because we have already wasted our time. 20 minutes पहले लेटे हम लोग. So as I said to you, basic concepts में सबसे पहले जो बताया था, that is the meaning. Lingua franca of the world. It is a language of communication of the world. English is a communication language which is used in the whole world. We all know number of letters available in the English. That is a A, B, C, D till Z. That is the last one. We again know the vowels. स्वर जिसको बोला जाता है मराठी में. The vowels, that is A, E, I, O, U. These are the 5 vowels are there. In case of consonants, usually we consider B, C, D. That means basically letters other than the vowels, they are considered as a consonant. We all know these two things. We all know about the vowels. We all know about the consonants. But there is a third concept you can find out here: semi vowels. That is a W and Y. Now, now for some of you, it's totally a new part. You will be like, what is this semi vowel and all this stuff? And but some of you might be aware about these things, because those who are preparing for the competitive exams, mostly they have a knowledge about this thing. That is, what is a semi vowel. So just I have explained the semi vowel concept below. For some words, spelling starts with the vowel. Okay, but its pronunciation starts with the letter that sounds like a consonant. मतलब जो स्पेलिंग है जो वर्ड का, वो स्पेलिंग चालू होगा वॉवेल से, बट जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे, ओके, सो जब प्रोनाउंस करोगे तो जो जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इट विल बी लाइक अ कंसोनेंट. देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है: वन यूरोपियन,
The spelling of one starts with the O. O is a vowel, but when we pronounce it, um, when we make a pronunciation, that one it sounds like a V. V means it sounds like a W. Okay, because हम लोग उसको अन नहीं बोलते. ओके, हम लोग उसको अन नहीं बोलते, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं. सो while making a pronunciation, it sounds like a v. V means it's like a W, and W is like a vowel. Okay, you never pronounce one as a un, because you will say like there is a o, or you will never pronounce it like a on. So ये भी नहीं होता, right? Then the second word is a European. आगे भी और सारे words है, ये just खाली आपको मैंने explanation के लिए डाले हुए हैं. European, the spelling starts with the vowel e. We never pronounce it like a European. Okay, we pronounce it like a European. That is a y. Y means sound of y, sound like a y. So um, in major cases, pronunciation either it will start with a v or a y, that is a w, like a w or like a y, or it will start with the normal vowel. Okay. So semi-vowels, it means these are the words whose spelling starts with the vowel only, and its pronunciation, while making its pronunciation, it sounds like you're using a consonant. जैसे one है, European है, university है, unicorn है, ये आगे आएगा आपको, ठीक है? So basically these three things are there: vowels, consonants, and semi-vowels. Okay, so let's move forward. Uh, right now we are doing the English, but you may be all of aware about this thing, the sad news. It came on our news, like the singer Lata Mangeshkar, she passed away. So at the age of 92 or 93 something, she passed away. Okay, so it's a very sad demise. In the last week, the another actor, another well-known Marathi actor, even though he worked in a Hindi industry, Bollywood industry, Ramesh Dev, he also passed away. Okay, so I think this era, it's getting very much difficult for us to survive. Okay, so let's take care of yourself first, and may their soul rest in peace. Okay, चलो. Let's start with a topic. मैंने बताया था कि directly we will move on with the topic. उसमें कोई time pass नहीं करेंगे, because yeah, we have a limited sessions available. So the first topic which is I am going to cover here, that is the use of articles. This is the most important topic, and this is the most what you can say, most ignored topic, because a lot of time we used to ignore these things. A lot of people, they feel like, okay, even though, what does it matter, even though if we use the wrong articles? Yeah, it matters a lot, because in case of competitive exams, a lot of question has been asked on this topic. It is a use of articles, and that carries a lot of weightage. And in the normal life too, whenever, if even though you are working with a certain company or working with a certain organization, while writing an email, I think it's very much important to use a correct English language. It's very much important to use correct articles, and that will surely create a great image of you. Because if you are using a correct English, if you are using a correct articles, then that will surely create an image in your employer, like, okay, this person has got a skills, he is fluent in English, he knows how to write the email, he knows how to speak. Because if you're using any of the grammatically wrong language in the email or in the report, that will surely create a bad image, or that will surely give a negative impact about you. Okay, so it's very much important topic, and it's an easy one so for the first session, I think we should start with the easy one. But honestly speaking, this is not that much easy, because here we will be covering the rules for article A, article N, article the, and the article the, it's very vast. There are a lot of rules involved in this article. So today, I think so, I have given only the 5 rules, but yeah, we have to discuss a lot of rules. There are about 10 rules of the article the. So let's start without wasting a time. Remember this article A and article N, it is considered as an indefinite article.
An article the is considered as a definite article. Now, what is the difference between the definite and indefinite? In case of indefinite article, it's like you are talking about a certain thing or you are talking about a certain person, and you are talking about a general person or you are talking about a general thing. You are not talking about a specific one. That's why it's like a indefinite. You are not talking about any definite thing. It's like, okay, it's like you are saying, okay, there is a boy. Okay, so you're not specific about that person. That boy can be anyone. Maybe there are 10 to 15 boys. So it's not like you are talking about this a specific boy. You're just saying that, okay, there is a boy or there is a group of boys. That means you're talking about a general term. You're talking about the general group of boys. Okay. But if you are saying, okay, there is the Ramesh who is standing. So you're talking about Ramesh. Okay. It means you are talking about a definite person. So indefinite, basically how you are going to remember it. It's like you are talking about a general name. You are talking about a pronoun. Uh, you are talking about a group. You are talking about a single person. जैसे अभी boy बोलोगे, that is a normal, that is a pronoun. Okay, it indicates a group. Boy, it means boy can be anyone. It can be the Ramesh, it can be the Suresh, it can be the Mangesh, anyone. Okay, so remember this thing. A and N, they are used they are used as indefinite articles, and the is used as a definite article. Okay, so दो के बारे में और डिस्कशन करना है आगे. फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द ए एंड. देखो रूल्स ऑफ ए एंड में क्या बताया. देखो सबसे पहला रूल आपको बताया गया, इफ एनी सिंगुलर नाउन is mentioned as a primary object in a sentence, use article a or n before the noun. अगर आपके अगर उस स्टेटमेंट में जो भी आपका नाउन है उसको आपने अगर प्राइमरी नाउन, प्राइमरी उसका ऑब्जेक्ट है, उसका जो आपने उसको प्राइमरीली मेंशन किया है, इट इज लाइक अ मेन सब्जेक्ट, देन यूज अ ए और अ एन. जैसे देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया, आई सॉ अ स्नेक, मैंने किसी एक सांप को देखा. अ स्नेक, एक सांप को देखा, मैंने पूरा ग्रुप नहीं देखा था. ओके, और यहाँ पे प्राइमरी सब्जेक्ट क्या है, तो प्राइमरी सब्जेक्ट है स्नेक, बिकॉज अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे बोलूंगा आई सॉ, सो दैट विल बी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, राइट, बिकॉज आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, इट इज अ क्वेश्चन. सो आई सॉ अ स्नेक, सो दैट्स व्हाई जब मैं स्नेक बोल रहा हूँ तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो जो है वो कंप्लीट होता है. सो दैट्स लाइक अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट. आई सॉ अ स्नेक, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, या फिर आई सॉ अ बॉय, or else he is a boy. Okay, so basically in these cases we are using these subjects, these objects as a primary. Okay, so as a primary objects we are using these things, and before the name of such things mostly we use a later, we use a later. Now when to use a an later, that is also the question. Obviously एन के बारे में सब पहले बात करेंगे. पहले ये समझे, आपको क्लियर है क्या बताया मैंने. इफ एनी सिंगुलर नाउन इज मेंशन्ड एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट, if you are making a general statement and you are talking about a certain thing, you are talking about a certain commodity, you are talking about a certain person, sorry, a certain group. Okay, then you can use a erlang, a article. It's like I saw a snake, I saw an elephant, I saw a horse. Okay, अभी मैंने an elephant बोला because that elephant spelling it starts with the e and pronunciation start with the a. Okay, so it's like a vowel, so that's why an elephant. वो आगे है रूल, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे कैसे करना है. I saw a lion, I saw a tiger. Okay, so अगर सिंगुलर नाउन है तो आप यहाँ पे बिकॉज जो है ए जो है ए ऑल्सो इंडिकेट्स अ सिंगुलर नाउन. आप ये नहीं बोलोगे आई सॉ बॉयज, आई सॉ अ बॉयज, यू वोंट से दैट. आप यहाँ पे अ बॉयज नहीं बोलोगे. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं. देखो यहाँ पे हम लोग ने अ गर्ल बोला है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने अ गर्ल बोला है. बट इफ इट इज लाइक अ गर्ल्स, अभी यहाँ पे एक्चुअली आई डोंट हैव पेन, सो ये जरा माउस से लिख रहा हूँ मैं. यहाँ पे अगर गर्ल्स होता,
सो आप यहाँ पे ए आर्टिकल यूज नहीं करते. ओके, सो अगर इफ इट इज अ प्लूरल फॉर्म देन यू, ये जो ए है आप इसको यूज नहीं करोगे. ओके, तो जस्ट मेन जस्ट सॉरी आई वाज चेकिंग. सो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको. अगर आपके पास जस्ट अ मिनट. चलो, ये समझ में आया आपको क्या क्या हम लोगों ने. ओके, सो ठीक है, मिनट जस्ट. तो मैं अगर यहाँ पे गर्ल्स होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पे अ वर्ड यूज नहीं करते. आप लोग यहाँ पे ये जो अ है इसको यूज नहीं करते. ओके, सो इफ इट इज अ सिंगुलर नाउन देन ओनली यू विल यूज अ. अगर वहां पे प्लूरल फॉर्म है वहां पे क्या है, actually as I said to you, I'm you doing this from the mouse, so you all know that how much difficult it is. If it is a plural noun तो आप यहाँ पे जो अ है वो यूज नहीं करोगे. ओके, सो दैट्स वाले को यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ड जो है हम लोगों ने यहाँ पे डेलिबरेटली यूज किया है. ठीक है, गाया आ गया अभी यहाँ तक क्लियर है. सिंगुलर नाउन होगा और अगर उसका जो बिगिनिंग है वो अगर वॉवेल से नहीं हो रहा है, इफ इट इज बिगिनिंग विद द कंसोनेंट. ओके सॉरी, आई विल चेंज द कलर ओवर हियर. इफ इट इज बिगिनिंग विद द कंसोनेंट तो आप क्या यूज करोगे, प्राइमरीली आप यूज करोगे अ आर्टिकल. इफ इट इज बिगिनिंग विद द कंसोनेंट यू विल यूज अ आर्टिकल. ओके, और वो जो वॉवेल जो आपको सेमी वॉवेल बताया था, इफ इट इज स्टार्टिंग, इफ इट इज लाइक अ सेमी वॉवेल, इफ इट इज लाइक अ सेमी वॉवेल, ये है आगे रूल तभी करवाऊंगा मैं. इफ इट इज लाइक अ सेमी वॉवेल देन यू विल आल्सो यूज द टर्म. आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप वहाँ पे एंड करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बताया. यहाँ पे अभी एन का रूल, एन नहीं पे, एन का रूल पहले यहाँ पे देख लेते क्या है. एन का रूल सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं. ओके चलो, देखो यहाँ पे एन का रूल क्या है. If any singular pronouns pronunciation starts with a vowel, कोई भी singular pronoun है उसका pronunciation अगर vowel से start हो रहा है, if it's starting with the vowel, और सबसे important बात है, और its pronunciation is starting, it starts with unspoken h. Unspoken h means it's like a vowel, even though that word start with the, yes, word start with the h. Okay, but वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है एच से, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट्स लाइक अ वॉवेल, इट्स लाइक अ वॉवेल. देन यू विल यूज एन बिफोर इट, देन यू विल यूज एन बिफोर इट. ओके, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे. सबसे पहली बात तो एन अम्ब्रेला, यू कैन सी द अम्ब्रेला ओवर द स्क्रीन. देखो हम लोग सब लोग यूज करते हैं रेनी सीजन में अम्ब्रेला. In today's area we are using the umbrella in the summer season also, because you all are living in Mumbai, we all know that how much heat is there. So umbrella तो अभी यूनिवर्सल हो चुका है, डोंट वरी. सो और अभी उसमें तो बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं, अलग अलग टाइप आते हैं. हम लोग देखते हैं सब लोग नए नए टाइप यूज करते हैं. हम लोग मेजरली मेल जो होते हैं वो ब्लैक यूज करते हैं, बिकॉज हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उसमें. बट या, और बहुत सारे लोग फैशनेबल भी यूज करते हैं. सो सब लोग का अपना चॉइस है. So an umbrella. Why an? Because first of all, spelling starts with the U.
and pronunciation it sounds like a umbrella. So it starts with a or it starts with the okay. So it's like a vowel, it's like a स्वर अगर मराठी में बोलेंगे. So यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो चालू भी हो रहा है वॉवेल से, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट इज आल्सो लाइक अ वॉवेल. What I'm saying, the spelling it is starting with the vowel. Pronunciation it is also starting with the vowel, it is also with the vowel. Okay, so that's why यहाँ पे we will use umbrella, we will use an umbrella. यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है. So whenever you are writing an email or anything, like, first of all ask question to yourself, okay, whether it is starting from the vowel. Then second question, its pronunciation, is it starting, it is sounding like a vowel or it is sounding like a consonant. So if it is sounding like a vowel, then obviously you will use an. If it is sounds like a consonant, you will use a e. Okay. um, in case if there is any disturbances from the background, kindly apologize, uh, because of the network issue I have to make adjustments. Okay, so थोड़ा issues है यहाँ पे, sorry, but from the next session it won't happen. Yeah, network issues है, so थोड़ा मुझे घर के बाहर आके बैठना पड़ रहा है. So चलो next let's move forward. An honor, हम लोग honor बोलते हैं ना कि honor, यहाँ पे spelling it is starting with the h as I said here. An honor, but देखो यहाँ पे pronunciation कैसे चालू हो रहा है, o से, right? So this is a vowel. So yeah, in this case, the spelling starts with the consonant because H is not a vowel. H is a consonant, but pronunciation it sounds like a vowel. So here also you will use an. Here also you will use an because हम लोग इसको honor नहीं बोलते ना. अभी ये देखते हैं मेरे को मराठी में जमता है क्या. Yes. हम लोग इससे honor बोलते हैं क्या? Like it's like a honor to talk with you. No, हम लोग इसको honor नहीं बोलते, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? An honor. It's my honor to talk with you, right? The second one, again it's like a honorarium. यहाँ पे भी जो pronunciation है, that pronunciation is like a honorarium का मतलब क्या होता है? जो salary ये सब जो मिलता है. Usually it's not a salary actually. Honorarium basically it means if you are a visiting faculty at some places. मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में आप जाओगे ना कभी टीचिंग करने के लिए, जैसे मैं अभी विजिटिंग फैकल्टी हूँ सोमैया में, मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में. सो सॉरी मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, रियली सॉरी. आई एम visiting faculty. So in this case of visiting faculty, we do not get a salary because salary किसको मिलेगा? Salary will be paid to the full-time employee, and we are not a full-time employee. We are a visiting faculty. So in case of visiting faculty, honorarium is paid to the visiting faculty. Okay. So it's like a remuneration only. It's like a salary. It's like a salary only. So देखो basic meaning same ही है, उसमें कुछ का difference नहीं आता है. Okay. So we are a visiting faculty. हम लोग क्या है? विजिटिंग फैकल्टी है. यहाँ पे मैंने विजिटिंग फैकल्टी. ओके. So honorarium, the spelling starts with the term o. Okay. So here the spelling starts with the consonant, but pronunciation starts with, or pronunciation sounds like a vowel. It sounds like a vowel, so that's why यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? We will use an term. We will use an term. Then an R, or you can call it as a hour. Some people they pronounce it like a hour, or you can call it as an R. Okay, so again spelling starts with the H term. Spelling starts with the H term, but pronunciation starts like sorry, pronunciation starts like a or pronunciation starts like a. That is known as a. It sounds like a vowel. Okay. So again, spelling starts with the consonant, but your pronunciation starts like or sounds like a vowel. So in everything you will use an term. क्या use करेंगे हम लोग यहाँ पे? An term को use करेंगे. So क्या बताया मैंने आपको? If any singular pronouns
pronunciation starts with the vowel or its pronunciation starts with unspoken h, because while making a pronunciation we do not use to speak, we do not use to pronounce it like a honor, honorarium, hover. हम लोग इसको ऐसे नहीं बोलते, हम लोग इसको ऑनर, ऑनरेरियम, एन आर और या फिर एन आवर, हम लोग इसको ये ऐसे बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई यू विल यूज आर्टिकल एन बिफोर इट. कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पे? एन यूज करेंगे. ओके चलो. सो आई होप टिल नाउ आपको सब क्लियर है. इट्स लाइक एन अम्ब्रेला बिकॉज स्पेलिंग स्टार्ट्स विद द यू, spelling starts with the u, pronunciation starts like a umbrella. So pronunciation होगा कैसे? Umbrella. So both of these things are vowel. Okay. And honor spelling starts with the h, but pronunciation starts with the honor. Spelling starts with the o. Right? It's like again a vowel. And honorarium. So देखो यहाँ पे honorarium again spelling starts with the h, pronunciation starts with the o. Okay, ये भी सारे होंगे. And our spelling starts with the h, pronunciation starts with the a, sorry a, या फिर आप इसको r भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? ओके चलो. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो. Now there are certain exceptions to this rule. अब इसको यहाँ पे है exceptions. क्या है यहाँ पे? Exceptions. देखो यहाँ पे exception का मतलब क्या होता है? Exception means for these letters the rule of a and n आप इसको directly apply नहीं करते. They have their own rules. They have their own rules. उनका खुद का rule है यहाँ पे. They have their own special rules. Okay. Just a minute. Let's talk about the exceptions to the rule of an. Okay. Sorry about the disturbances. थोड़ा बीच में pause करना पड़ा. There are exceptions to the rule of e and n. It means these words they have their own rules. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, these words they have their own rules. It means the basic rules of a and the basic rule of n, they are sometimes not applicable, or there are certain special words for which you will use a, you will use and some of them are special words. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे words बहुत है. First of all, I have taken a main words. The first one, nuisance. A nuisance or nuisance, it's like you are just hurting someone. जिसको हम लोग मराठी में हम लोग इसको उपद्रव बोलते हैं. यू आर जस्ट लाइक डिस्टर्बिंग समवन, यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग समवन. उपद्रव जिसको बुलाता है, ये जानबूझ के तकलीफ दे रहे हैं हम लोग किसी को. न्यूसेंस को यहाँ पे अगर न्यूसेंस वर्ड आ रहा है तो याद रखना है आपको, यू आर गोइंग टू यूज द लेटर ए, यू आर गोइंग टू यूज द आर्टिकल, सॉरी लेटर नहीं, आर्टिकल ए. अब पीटी, पीटी का मतलब है काइंडनेस, कंपैशन. ओके, दया जिसको बोलते हैं हम लोग, पीटी. तो यहाँ पे भी आप अगर पीटी वर्ड आ रहा है खाली तो आप इट विल बी लाइक अ पीटी. ओके, अ पीटी, व्हाट अ पीटी फेस. ओके, देन इफ इट इज लाइक अ शेम, सो अगेन इट विल बी लाइक अ शेम. याद रखना है, इट विल बी लाइक अ शेम. अभी शेम का मीनिंग बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पे आपको. Then it's like a pleasure, it's my pleasure, or it's if it is a singular word, so it is a pleasure, it is a pleasure. यहाँ पे क्या बोलेगा? pleasure. pleasure मतलब you are happy with this thing, whatever good happens with you. Okay, if there is a noise, it will be a noise. क्या होगा वो? Again it will be a noise. Okay, there is lot of noise. Okay, so it will be a noise. Okay, then it is a rage. If it is a rage, it's like a rage. Anyone knows what is the meaning of rage?
Anyone knows about it? What is the meaning of rage? देखो, द बेसिक मीनिंग ऑफ रेज, बहुत बार हम लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं. इट्स लाइक रेज मतलब वी यूज्ड टू कॉल इट एज एंगर, और हम लोग इसे गुस्सा बोलते हैं. अगर आप मराठी में बोलोगे तो हम लोग इसको बोलते हैं कि राग बोले. इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ हेट, राग बोलो, या फिर मराठी में इसको द्वेष बोलो. देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग एंग्री, और इट्स नॉट ओनली अबाउट हैविंग अ like hating someone. Rage, it's like a strong feeling. Rage का मतलब होता है it's like a strong force of a feeling. So whether it is अगर वो ये भी हो सकता है. It's like it is about the anger also. You are very much angry about certain person. You have a strong feeling of angriness. That is also rage. You are feeling loved about someone. हम लोग हिंदी में वो पिक्चर में नहीं कहते ना, मुझे बहुत प्यार आ रहा है, राइट? मुझे क्या आ रहा है? बहुत प्यार आ रहा है, राइट? सो द इट्स लाइक एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ लव. दैट इज आल्सो द रेज, यू कैन से. सो रेज का बहुत बार रॉन्ग मीनिंग हमें इंटरप्रेट करते हैं हम लोग. रेज का मीनिंग हम लोग लेते हैं कि भाई गुस्सा निकल रहा है, या फिर यू कैन कॉल इट एज अ बदला. रेज का मतलब है बदला. मैं अभी खून का बदला, खून ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, सुना होगा आपने कभी तो, राइट? शोले पिक्चर देखा होगा इनकेस, तो आपको डायलॉग मालूम होगा, बदला. या फिर बहुत मीम्स में भी आता है. सो रेज का मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट that badla, it's not only about that angerness, it's about a strong force of feeling that includes the feeling of being loved. It is also the rage of a love. इसको बोलते हैं rage of a love. Okay, so it's like I am having a strong feeling of love. Okay, so ये clear हो गया आपको? क्या क्या बताया word? A nuisance. It's like you are just creating a nuisance. So that's what मैं कह रहा हूँ, you are creating a nuisance. क्या कर रहा हूँ मैं? तकलीफ दे रहा हूँ किसको. Then what a pity face, a pity face. What a shameful act. हम लोग क्या बोलते हैं? What a shameful act, right? What a pleasure. It's my pleasure, or like I'm happy with you. Okay. A noise, a reach. ये आपको यहाँ पे याद रखने. जब वर्ड्स आपको यहाँ पे बहुत बार कैसे होता है कि major times when we used to frame a statement, we totally forget that what kind of articles we have to use. अभी यहाँ पे तो बेसिक रूल अप्लाई करोगे तो भी आपको समझेगा, बट समटाइम्स इट्स लाइक अ शेम. शेम इट एक्सप्रेस फीलिंग. शेम का एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग. बिकॉज आप बोलोगे रूल जो दिखाया था, रूल में मैंने बताया था द आर्टिकल इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन. सो ये फीलिंग है तो इसके पीछे भी आप आर्टिकल लगाओगे, राइट? अ न्यूजेंस, अ नॉइज, इसके पीछे भी आप आर्टिकल लगाओगे. ठीक है. देन अगेन एक्सेप्शन में और आगे है अ लार्ज नंबर ऑफ. अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? इन अ ग्रेट नंबर, इन अ ह्यूज नंबर. आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी है आपके पास. और दिस आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो मैं बोलूंगा अ लार्ज नंबर ऑफ. अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब मेनी. अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, मेरे पास बहुत ज्यादा है. ठीक है. सो कभी भी आप ये फ्रेज यूज करोगे लार्ज नंबर ऑफ, इट शुड नॉट बी लाइक लार्ज नंबर ऑफ, इट शुड बी लाइक अ लार्ज नंबर ऑफ. क्या वर्ड यूज करना है आपको? अ वर्ड यूज करना है यहाँ पे. ओके. अ लार्ज नंबर ऑफ. ओके. देन कीप अ सीक्रेट. कीप अ सीक्रेट, कोई सिंगुलर वर्ड है यहाँ पे, सीक्रेट्स नहीं बोला है मैंने. कीप अ सीक्रेट. ओके. बहुत बार हम लोग होता है ना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स में हम लोग के सीक्रेट्स होते हैं. मुझे वो लड़की पसंद है, वो लड़का पसंद है, एंड हम लोग अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई सीक्रेट रखना. सो तभी हम लोग क्या बात करते हैं, लाइक ओ माय फ्रेंड कि प्लीज कीप इट अ सीक्रेट. प्लीज कीप इट अ सीक्रेट. इसको आपको क्या रखना है? सीक्रेट रखना है. क्या रखना है इसको? आपको सीक्रेट रखना है. इसको आपको छुपा के रखना है. सो अगर ये एक सीक्रेट है तो इट्स लाइक अ सीक्रेट. ओके. सो कीप इट अ सीक्रेट. यूजुअली हम लोग कीप इट सीक्रेट्स ऐसे वर्ड यूज करते हैं. हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि लाइक प्लीज कीप इट सीक्रेट्स. कीप इट अ सीक्रेट्स नहीं बोलते हम लोग. सो कीप इट एज अ सीक्रेट बोलते हैं.
या फिर कीप इट अ सीक्रेट बोलते हैं. सो मोस्टली यहाँ पे हम लोग जो एस है उस एस को मोस्ट लैंग्वेज में हम लोग यूज नहीं करते मोस्टली. ठीक है. देन इन अ हरी, आई एम इन अ हरी. आई एम इन हरी ऐसे नहीं होता. आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी. हरी का मतलब क्या होता है, मुझे थोड़ी जल्दी है या फिर मुझे थोड़ा जाना है. कहाँ पे क्या जाना होगा आपको, वहाँ पे बेचारी आपकी गर्लफ्रेंड आपकी राह देखती होगी. सो यू आर इन अ हरी. या फिर आपको ट्रेन पकड़ना है, या आपको बस पकड़ना है, आपको टैक्सी पकड़ना है. लाइक बराबर. आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, हमें जाना हॉस्पिटल. आई एम इन अ हरी. क्या होता है, आई एम इन अ हरी. ओके. देन यहाँ पे है इन अ नेट, इन अ नटशेल. क्या बोल रहे हैं, इन अ नटशेल. नटशेल का मतलब होता है यू आर एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ. ओके, इन शॉर्ट, या फिर मराठी में बोलेंगे थोड़क्यात. नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ. आई एम विल एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ. यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आई विल एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ. ओके. सो इन अ नटशेल का मीनिंग क्या होगा, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ब्रीफली. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट. सो हम लोग भी बोलते हैं ना इन अ शॉर्ट. जैसे यहाँ पे आएगा इन अ नेट सेल. और भी याद रखना है आपको, जब भी आप whenever you start writing a letter or writing an email, these are the very much important thing, these are the very much important article rules. So it's like a net cell. Okay, so ये इसका make a list of these things in your notebook, because obviously we have a time. So make a list of these things. Always keep reading these things so that you will get a reference or you will get used to these things. Okay. अगेन अ ग्रेट डील ऑफ. अगेन इसका भी एक सिमिलर मीनिंग मैनी के तरह ही आता है. अ ग्रेट डील ऑफ. ओके. ऑलवेज यूज अ वर्ड अ ग्रेट डील ऑफ. इट शुड नॉट बी लाइक ओनली ग्रेट डील ऑफ नहीं बोलते हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अ ग्रेट डील ऑफ. ओके. यहाँ पे क्या आएगा आपका, अ ग्रेट डील ऑफ. देन अ डजन. गिव मी अ डजन ऑफ बनाना. गिव मी अ डजन ऑफ बनाना. सो हम लोग अ डजन बोलते हैं, बिकॉज डजन का मतलब होता है कितना क्वांटिटी, तो 12. राइट. सो इट्स लाइक अ सिंगल क्वांटिटी. अ डजन 12 का केला. सो दैट्स व्हाई अ डजन. ओके. डजन्स होंगे तो आप यहाँ पे अ यूज नहीं करोगे. इफ इट इज अ डजन्स देन अ यूज नहीं करोगे. गिव मी अ डजन्स नहीं यूज करते, बिकॉज अ डजन होगा तो आप इसको यहाँ पे क्या यूज करोगे, आर्टिकल ए. समझ में आ रहा है रूल्स. अ ग्रेट नंबर ऑफ, कीप अ सीक्रेट, इन अ हरी, इन अ नेट शेल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ डजन. ये सारे जो है ये एक्सेप्शन है यहाँ पे. ठीक है. और भी है, देखते रहो यहाँ पे. ओके. चलो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा अगेन एक्सेप्शन. सो ये लास्ट लिस्ट है आपका. अ हेडेक. आपको क्या है, हेडेक है. अ हेडेक. हेडेक मतलब क्या, हेडेक का मीनिंग क्या होता है, यस परफेक्ट है. हेडेक का मीनिंग है मतलब आपका क्या हो रहा है, आपका सर दुख रहा है, आप तुमसे डोका दुखता है. अ हेडेक. ठीक है. सो सो अ हेडेक का मतलब क्या होगा, आई हैव अ हेडेक. मैं मुझे बहुत सारे हेडेक होते हैं क्या, होता है क्या आपको कि नहीं, मेरे मेरे बहुत सारे सर है, मेरे बहुत सारे सर में दर्द हो रहा है. किसको होगा, अ हेडेक जो जो वर्ड है ये कॉमन है पर्सन के लिए. बट यहाँ देयर विल बी सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस थिंग. ऑन अ फनीएस्ट पार्ट आई एम सेइंग दिस थिंग. ऐसा कोई बंदा है जिसको बहुत सारे हेड्स है. अ पर्सन हैविंग लॉट ऑफ हेड्स, और लाइक पर्सन हैविंग अ मोर देन वन हेड. तो यहाँ पे मैंने इनिशियल लिखा हुआ था. यस यू आर करेक्ट. देखा है ना, रावण में देखा है, रामायण में देखा है, रावण के कितने सर होते हैं, रावण के सर कितने होते हैं, 10 होते हैं. बराबर है. सो अगर रावण के 10 के 10 सिर में अगर हेडेक हो गया तो वो अ हेडेक नहीं बोलेगा. ठीक है. अगर उसके 10 के 10 सिर में होगा तो वो अ हेडेक नहीं बोलेगा. अब इसको क्या बोलेंगे वो बात अलग है, बिकॉज अब तक पहले रावण को सामने तो आने दो, बाद में हम लोग देखते हैं इंग्लिश में क्या बोलना है. बिकॉज ये जो रावण है, ये जो रामायण है, ये कहाँ पे हुआ, हम लोग के हिंदुस्तान में हुआ. इट हैपन्स इन आवर इंडिया. ओके. और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ओरिजिनली कहाँ से आया, ओरिजिनली ये ओरिजिनली आया था यूरोप कॉन्टिनेंट, यहाँ से इंग्लैंड से आया था. तो अभी अंग्रेजों को तो रावण का र भी नहीं मालूम. सो क्योंकि अंग्रेजों ने अपने जिंदगी में अब तक एक ही सिर का आदमी देखा है, वन हेड पर्सन. तो दैट्स व्हाई उन्होंने सोचा ही नहीं ना कि अगर 10 दिमाग होंगे तो क्या बोले. So they haven't think about this thing.
So these Britishers, they never think about this thing, right? So they only know the person with the one head. That's why it is a headache. So normally consider करो a headache. On a joke part, we were discussing this thing. रावण के 10 सिर है तो क्या बोलेंगे? But वो हम लोग जब रावण आएंगे तो हम लोग तभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सो फिलहाल याद रखना है, अगर हेडेक है तो अ हेडेक, आपको क्या यूज करना है? वर्ड अ हेडेक। इवन दो यू हैव अ टूथ एक। अभी आप बोलोगे सर हमें तो दांत कितने होते हैं? दांत होते हैं हम लोग को कितने होते हैं दांत? 32। कितने होते हैं? 32 हम लोग को होते हैं दांत। अभी कुछ कुछ लोग के दांत गिर गए वो अलग बात है, सो वो छोड़ दो। सो टूथ एक, इवन दो यू हैव अ टूथ एक, दैट इज कंसिडर्ड एज अ टूथ एक। आप बोलोगे सर मेरे 2 दांत दुख रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ? टूथ एक्स, या फिर मैं अभी यूज ना करूँ? नहीं, टूथ और दांत इट इज कंसिडर्ड एज अ वन बॉडी ऑर्गन। बिकॉज अगर आप दांत बोलोगे तो आपके दिमाग में एक ही इमेज आता है, राइट? सो इट इज कंसिडर्ड एज अ वन बॉडी ऑर्गन। सो इफ इट इज अ वन, दैट्स वाई आप यूज करोगे अ टूथ, ठीक है? अभी आपको 2 किडनी है, 2 ही है ना? क्या बेच दी? आईफोन लेना है, आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना, सो बेच दी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बेचे आपने। सो किडनी की बात करोगे तो अगेन वी हैव अ 2 पेयर्स ऑफ किडनी। सो यू वोंट बी लाइक ओके आई हैव अ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन नहीं होता, आपको होता है किडनी स्टोन, मुझे मेरे किडनी में स्टोन हुआ, मुझे बहुत सारी किडनी है क्या? तो नहीं। सो सेम लॉजिक है, टूथ एक, इट्स लाइक यू आर having a pain in your tooth, you are having a pain in your दांत, so it is considered as a one body organ, so that's why यहाँ पे ये आप क्या बोलोगे इसको? तो टूथ बोलोगे, ठीक है? अ बैड कोल्ड, अब एल्कोहल का मतलब होता है बहुत ज्यादा आपको सर्दी हो गई। क्या हो गई? बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। आप ये नहीं बोलेगे अभी आपको कम सर्दी है, नॉर्मल सर्दी है, तो आप बोलोगे आई हैव अ कोल्ड। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो आई हैव मेनी कोल्ड नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं अ बैड कोल्ड। बट यू वी विल यूज अ ओनली, बिकॉज सर्दी का प्लूरल फॉर्म कुछ नहीं होता है ना, सर्दी सर्दी होता है, राइट? सो आई हैव अ कोल्ड, और अगर ज्यादा है तो आई हैव अ बैड कोल्ड। अगेन यूज करना है, ठीक है? देन इन अ विस्पर, विस्पर का मतलब होता है टू मटर और टू स्पीक वर्ड्स अनक्लियरली। हम लोग मराठी में बोलते हैं कुजबुजणे, खुसफुस करना बोलते हैं ना हम लोग, खुसुर खुसुर करना, इन अ विस्पर। कभी भी याद रखो, अगर विस्पर आ रहा है वर्ड इन अ विस्पर यूज करो टर्म, तो दैट विल बी अ विस्पर, ओके? इन अ लो वॉइस, धीरे से बात करना, इन अ लो वॉइस। इन लो वॉइस नहीं बोलते, इन अ लो वॉइस, यार टॉकिंग अबाउट इट वॉइस, ओके? सो कैसे बात करें? धीरे बात करें। इन अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस, बड़े से बात करें। अ पेयर ऑफ, आई नीड अ पेयर ऑफ शूज, मुझे क्या चाहिए? अ पेयर ऑफ शूज चाहिए। दैट मीन्स मुझे एक ही पेयर चाहिए ना। अभी आप जब स्टोर में जाते हो परचेस करने, तो होता है कभी कभार 2-3 पेयर हम लोग खरीदते हैं। बट अगर आपने नाइकी का शूज लिया तो आप बोलोगे क्या? आई हैव परचेस अ पेयर ऑफ शूज। कभी ऐसा रहेगा कि आप दुकान में गए 3 शूज लेके आ गए, 2 शूज लेफ्ट के लिए, एक शूज राइट का लिया? नहीं होता है ना। तो एक पेयर में आपको कितने आर्टिकल्स मिलेंगे? 2 मिलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ पेयर, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ पेयर। इसको क्या बोलेंगे आप? अ पेयर बोलेंगे, ठीक है? अ ग्रेट मेनी, ये आई थिंक पीछे के स्लाइड पे हुआ था, रिपीट आया है, प्रिंटिंग का एरर है। अ ग्रेट मेनी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है पहले? सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द रूल्स ऑफ ए एन। आपको इस एक्सेप्शंस को याद रखना है, लिख के रखना है आपके नोटबुक में, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो देखो, ए और एन का रूल हमने देख लिया, एक बार वापस देख लेते। ए एन के क्या क्या रूल्स देखे थे हम लोगों ने? सॉरी, जस्ट अ मिनट, इट्स चलो, क्या क्या रूल देखे थे यहाँ पे हम लोगों ने? देखो, ए एन का बेसिक रूल क्या लिखा था? इफ एनी सिंगुलर नाउन इज मेंशन्ड एज प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इफ इट इज मेंशन्ड एज अ
प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो आप क्या करोगे, ए और एन का रूल लिखोगे। क्या देखा था, अ स्नेक, एक देखा स्नेक, अ गर्ल, अ बॉय। ठीक हो, ठीक है। सो अगर आप प्राइमरी सब्जेक्ट करके यूज करोगे तो आप ए और एन का रूल अप्लाई करोगे। ठीक है। सेकंड में देखो क्या बोला था यहाँ पे आपको, इफ एनी सिंगुलर प्रोनाउंस स्टार्टिंग विथ वॉवेल, कैसे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विथ वॉवेल, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट स्टार्ट्स विद द कंसोनेंट लाइक वाई एंड डब्ल्यू, तो आप क्या करोगे, आर्टिकल ए यूज करोगे। आप क्या करोगे, आर्टिकल ए यूज करोगे। सो दैट वे, देखो एग्जांपल देखा था आपको, ये मिस्ड आउट किया हम लोगों ने शायद से, आई थिंक। ओके, ये वापस में एक बार इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई मिस दिस स्लाइड। एग्जाम्पल देखो क्या बताया था रूल, ये जस्ट मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था जब सेमी वॉवेल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो आई थिंक आई मिस्ड आउट दिस स्लाइड, डबल क्लिक हुआ था। इफ एनी सिंगुलर प्रोनाउन इज देयर, इफ इट स्टार्ट्स विद अ वॉवेल, इसका जो स्टार्टिंग है वो वॉवेल से, वॉवेल कौन से थे, ए, ई, आई, ओ और यू। इफ इट इज स्टार्टिंग विद द वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट साउंड्स लाइक, और इट स्टार्ट्स बोल सकते हो इसको यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इट साउंड्स लाइक, कैसे, इट साउंड्स लाइक अ कंसोनेंट। एंड मोस्टली कौन से कॉन्फ्रेंस होंगे, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अब भी बताया मैंने लेक्चर में आपको, डब्ल्यू वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, डब्ल्यू वाई को क्या बोलते हैं, यस परफेक्ट है, इसको बोलेंगे आप सेमी, क्या, सेमी वॉवेल। आप इसको बोलोगे सेमी वॉवेल। व्हाई, बिकॉज word starts with the vowel but it pronunciation sounds like a consonant. सो अगर ऐसे हो रहा है तो आपको आर्टिकल ए यूज करना है। कौन सा आर्टिकल यूज करना है आपको, ए आर्टिकल यूज करना है। देखो ये साइड से साइड मिस हुआ था, सो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अ यूनिकॉर्न, स्टार्टिंग किससे हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है यू से, बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे है, तो प्रोनाउंसिएशन है यू, य का प्रोनाउंसिएशन है अ यूनिकॉर्न। यू मतलब इट्स लाइक अ वाई। ठीक है। सो दैट्स वाई अ यूनिकॉर्न। देखो यूनिकॉर्न मालूम है, यूनिकॉर्न बाइक की बात नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे घोड़ा दिख रहा है आपको, तो यूनिकॉर्न एक सिंगी घोड़ा। अभी ये होता तो नहीं है एक्चुअल में, या फिर पहले होता होगा पहले के जमाने में, तो वी डोंट नो। बट अभी राइट नाउ तो यहाँ पे ये यूनिकॉर्न है नहीं, बट अगर यूनिकॉर्न है तो आप उसको लोगे अ यूनिकॉर्न। अ यूरोपियन, ये मैंने पहले बताया था जब सेमी वोवेल का आपको बताया था मैं तभी। स्टार्टिंग है आपका ई से, किससे स्टार्टिंग हो रहा है, लेटर आपका ई से चालू हो रहा है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन अगेन यूरोपियन, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है य से, यू से हो रहा है। सो इट साउंड्स लाइक अ वाई ओनली, दैट्स वाई आप ये करोगे। अ वन वे स्ट्रीट, अगेन स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, बट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है व से हो रहा है। व मतलब क्या होगा, डब्ल्यू। सो दैट्स वाई आप यहाँ पे अ है, आप इसको अनवे स्ट्रीट नहीं बोलते, आप इसको यूरोपियन नहीं बोलते, आप इसको यूनिकॉर्न नहीं बोलते, हम इसे यूनिकॉर्न, यूरोपियन, वन वे स्ट्रीट। अ यूनियन, अगेन स्टार्टिंग विद द यू, बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो यू से है, य से है। अ वन रुपी नोट, वो अगेन वो आया यहाँ पे, राइट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप अगर रॉन्ग करोगे तो कुछ आंसर नहीं, आप इसको ईवे बोलोगे तो यहाँ पे आप एन वर्ब यूज करोगे। आप इसको अगर ईवे बोलोगे, सॉरी थोड़ा इससे माउस से लिखना डिफिकल्ट हो रहा है एक्चुअली, तो ट्राई करेंगे इसको प्रॉपरली लिखने के लिए। देखो मैं देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं। अगर आप इसको ईवे बोलोगे तो ऑब्वियसली आप रॉन्ग हो गए, बिकॉज आपका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल जैसा होगा, तो आप क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। बट ये जो ईवे है ये क्या है, ईवे, ईवे ईवे क्या है, तो ईवे ये रॉन्ग है, इट इज यू, और यू कैन यू, इसको यू बोलते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट जो होगा वो यू से होगा, इट्स लाइक यू। ओके, सो ई जो है वो थोड़ा साइलेंट रखना है आपको,
सो यू, ओके, सो दैट्स व्हाई अ यूज करता है यू। यू का मतलब क्या होता है, वो दिख रहा है साइड में आपको। अब ये कौन है, ये बकरी मत बोलो इसको प्लीज। ये तो बहुत लोग होंगे कि सर ये बकरी है। ये बकरी नहीं है बकरो। ये क्या है, मराठी में इसको बोलते क्या, मेंढी सुना है वर्ड। ये मेंढी या फिर मेंढा जो भी है, वी विल कॉल इट एज अ मेंढी और मेंढा। ठीक है, बकरी नहीं है, ये शिप नहीं है, गोट नहीं है, ये यू, ओके, मेंढा है यहाँ पे। सो ये रूल सेमी बाउल में बताया था बट डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज एक्चुअली आई एम सॉरी आई मिस्ड आउट माय स्लाइड। सो ठीक है, ये क्लियर है आपको यहाँ पे। आगे जाते हैं, ये अम्ब्रेला का आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या रूल्स है। यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल and pronunciation also sounds like a vowel, or else while making a pronunciation unspoken h is there, तो आप an बोलोगे। an umbrella, an honor, an honorarium, an r। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे जाएंगे। एक्सेप्शन भी आपको बताया हुआ है, अ न्यूसेंस, अ पिटी, अ शेम, अ प्लेजर, अ नॉइज, अ रेज, ये भी आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अ लार्ज नंबर ऑफ, कीप अ सीक्रेट, इन अ हरी, इन अ नटशेल, ये मीनिंग याद रखना है आपको प्लीज। बहुत बार ऐसा होता है आपको इसके मीनिंग नहीं मालूम होता है, ये टर्म्स को याद रखना है। ओके, सो अ नटशेल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ डजन, अ टूथेक, अ बैड कोल्ड, ये भी याद रखो। अगर आपको ज्यादा सर्दी है तो आप बोलोगे बैड कोल्ड। ठीक है, इन अ विस्पर, इन अ लो वॉइस, इन अ low voice, sorry loud voice, in a pair of, a great many, यहाँ पे और दो एग्जांपल्स आते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं at a stone's throw, क्या बोल रहा हूँ at a, अब ये एक मिनट है, यहाँ पे मैं बेटर इसको टाइप ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको टाइप ही करते हैं, at a stone's throw। अभी एट अ स्टोन्स थ्रो का मीनिंग क्या होगा, एट अ स्टोन्स थ्रो का मीनिंग मतलब इट्स लाइक, एट अ स्टोन्स थ्रो का मीनिंग होगा वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। अभी आप बोलोगे स्टोन का और क्लोज का क्या कनेक्शन, देखो आपको कभी अभी कभी गांव में गए होंगे ना, अगर आप मई महीना में गांव में जाओगे तो मई महीना में गांव में जाके हम लोग क्या खाते हैं, यस यू आर राइट, हम लोग खाते हैं बहुत अच्छे स्वीट स्वीट, क्या खाते हैं देखो, मैंगो, मैंगो खाते हैं ना, स्वीट स्वीट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंगो का झाड़ है तो हम लोग कैसे गिराते हैं मैंगो को, मैंगो क्या करते हैं हम लोग, पत्थर मारते हैं। तो मुझे बताओ अगर वो मैंगो ट्री बहुत लंबा है आपसे, मतलब आप लोग समझो यहाँ आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप खड़े हो यहाँ पे, और ये यहाँ पे वो समझो ट्री है, और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स का। तो क्या लगता है आप यहाँ से अगर पत्थर फेंकोगे तो वो जाएगा मैंगो ट्री पे। आप यहाँ पे खड़े हो और आपका जो मैंगो ट्री है वो है 10 किलोमीटर दूर है, तो आपका पत्थर जाएगा यहाँ तक, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो, ये मैंगो ट्री आपके सामने है, एग्जैक्टली मेरे सामने मैंगो ट्री है, तो पत्थर लगेगा ना। मतलब आप जो पत्थर फेंकते हो तो पत्थर कौन से चीज पे फेंकते हो, यू थ्रो अ स्टोन एट अ at a short distance, the thing which is very close to you, you can throw a stone towards that. You cannot throw that stone to the very far object, right? I cannot throw the stone, means I am sitting in a churny road, I cannot throw the stone to the dadar. Maximum I can throw the stone up to the 10 meter, 20 meter, 50 meter or 100 meter, चलो हाथ तोड़ना है तो 100 meter, not beyond that, right? So or else whatever it is, but you cannot throw that stone of a very far mile. I'm standing in a Mumbai and I can throw the stone to the Ahmedabad, ये तो नहीं होता ना, right? That's why at a thrown stone means a very close distance, but यहाँ पे याद रखना है at a thrown stone। हम लोग एक ही पत्थर फेंकते एक बार, हम लोग 10 पत्थर फेंकते, क्या मेरे हाथ में 10 पत्थर है, अलग हो गया आप, नहीं है, राइट? सो एट अ
स्टोन्स थ्रो। सो ये हो गया आपको यहाँ पे, ये और एक एक्सेप्शन आपको मैंने बताया, याद रखना। एक्सेप्शन में देखो और है यहाँ पे, आई थिंक सो, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो और एक है, टू टेल अ लाई। क्या हम लोग कर रहे हैं? टू टेल अ लाई, हम लोग क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। टू टेल अ लाई, यहाँ पे है अ लाई। इन अ फिक्स, अब आप बोलोगे इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? इन अ फिक्स इट मीन्स आई एम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और आई एम इन अ एम्बेरसिंग सिचुएशन। याद रखना है मीनिंग इसके। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज कॉल्ड एज इन अ फिक्स। So I am in a difficult situation and in a fix, in a fix. At a stone's throw, अभी बताया मैंने आपको, very near, very close, short distance, a short while ago, just वो निकल गया, he left home a short while ago, अभी वो just निकल गया, so a short while. To take a fancy, to take a fancy it means to start liking, to become fond of. It's like जैसे अभी समझो आपको कोई चीज है, कोई बाइक आपको पसंद आ गई, सो आई विल से टू टेक अ फैंसी टू, ओके, सो आई टेक अ फैंसी टू बाइक, सो आई स्टार्ट लाइकिंग द बाइक। अ कपल ऑफ, ये हो चुका है, अभी मैंने बताया आपको कि कपल का मतलब होता है पेयर, सो एक पेयर होगा। टू बी एट अ लॉस, दैट अ लॉस, टू बी एट लॉसेस, अ लॉसेस नहीं बोलेंगे, लॉस एक ही होता है, सो टू बी एट अ लॉस। यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? is these are the extra rules to the exception, ये भी है आगे। मुझे लगा था एक्चुअली मैंने ये स्टोन्स थ्रो मिस आउट किया, सो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, लेकिन यहाँ पे रख डाला हुआ है। चलो अभी जाएंगे वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, उसके ऊपर जाएंगे। देखो क्या है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, देखो क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट, यूज ऑफ द आर्टिकल द, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द को यूज करना है हमें। किसको यूज करना है? आर्टिकल द को यूज करना है। कैसे यूज करना है द का? देखो रूल्स बहुत सारे यहाँ पे, आज हम लोग खाली 5 रूल्स करेंगे, ठीक है। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के रूल्स करेंगे। आपको मैं थोड़े से प्रोवर्ब्स भी दे दूंगा, बिकॉज वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको प्रोवर्ब्स दे दूंगा, यू हैव टू टेल मी द मीनिंग इन आइदर मराठी और हिंदी, because these are the basic native languages which we all know, so that's why you have to give the meaning with the Marathi और हिंदी। तो चलो अभी आज फटाफट ये 5 रूल करते हैं। हम लोगों ने ए एन का रूल देखा हुआ है ऑलमोस्ट, अभी आगे जाएंगे। सो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है? यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, सो बी पेशेंस, वी हैव अ पेशेंस अबाउट इट, ओके। सो it is used before the name of specific commodity or a place. It's not a general commodity, मैं किसी भी जनरल चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जनरल कमोडिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कमोडिटी। देयर वाज अ बॉय, ये बॉय जो है ये कौन हो गया? ये बॉय हो गया जनरल, ठीक है। मैं किसी स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, रैंडमली बात कर रहा हूँ। सो अगर आप स्पेसिफिक चीजों की बात करोगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक कमोडिटीज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ, यू हैव टू यूज आर्टिकल द। आपको क्या यूज करना है यहाँ पे? द यूज करना है। देखो क्या एग्जांपल है, शट द डोर, माउथ नहीं, शट द माउथ नहीं, शट द डोर, इट मींस शट दैट स्पेसिफिक डोर। इफ लाइक समझो अभी योर फादर केम होम फ्रॉम from his work, so evening में पापा घर पे आ गए ना, that just father entered into the house and he kept the door open and then your father tell you like please shut the door, so आप जाके बाथरूम का डोर बंद करोगे क्या? नहीं ना। so basically that father is talking about a specific door. पापा किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक डोर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो you won't went to the bathroom and you won't close the door and आप तभी आर्गुमेंट नहीं करोगे हाँ पापा मैंने बाथरूम का डोर बंद कर दिया। तो क्या आएगी? एक उड़ती हुई चप्पल आएगी। क्या आएगी? उड़ती हुई चप्पल आएगी और बोलेगी जाके डोर बंद कर लो। सो इट मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डोर, हम लोग ऐसे नहीं बोलते शट दैट स्पेसिफिक डोर। अभी ये जो है ना दैट स्पेसिफिक, हम लोग इस दैट स्पेसिफिक के बदले क्या यूज करते हैं? द डोर यूज करते हैं। दैट स्पेसिफिक के बदले क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। इट मींस शट द डोर, इट मींस शट दैट स्पेसिफिक डोर। वो जो स्पेसिफिक डोर है उसको आप क्या करना है? उसको
बंद करना है आपको, ठीक है। एन आगे बोला एन इज इन द गार्डन, एन मतलब एन नाम की लड़की है कोई, तो वो कहाँ पे, इज इन द गार्डन, इट मीन्स आई एम वेरी मच क्लियर दैट शी इज इन द गार्डन ओनली, वो कहाँ पे है, गार्डन में, मुझे मालूम है कि वो कहाँ पे है, वो गार्डन में है। ओके, सो गर्ल नेम इन एन इज इन दैट गार्डन, सो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि एन इज इन दैट स्पेसिफिक गार्डन, हम लोग बोलते हैं कि एन इज इन द गार्डन, इट मीन्स मुझे मालूम है कि वो कहाँ पे है, तो गार्डन में है। कौन सा वाला गार्डन, तो वो स्पेसिफिक गार्डन। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे है, या फिर वो आपको श्योरिटी नहीं है कि वो कौन से गार्डन में है, तो आप क्या बोलोगे, मे बी एन इज इन अ गार्डन, मतलब वो शायद से गार्डन में है। हियर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट गार्डन, हियर आई एम नॉट specific about that garden, I am just making a probable condition, I am just giving a probability like she might be in a garden, ओ गार्डन, क्यों, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे श्योरिटी है क्या, तो मुझे श्योरिटी नहीं है, शी इज इन अ गार्डन, व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट गार्डन, बट इफ यू आर श्योर like she is in that garden, so I will be writing she, Anne is in the garden, because I know that which garden. So here I am very much sure about the garden, here you are नॉट श्योर अबाउट द गार्डन, यहाँ पे मैं गार्डन के बारे में श्योर हूँ क्या, तो श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट गार्डन, ठीक है। समझ में आ रहा है, इट मीन्स आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द गार्डन, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डोर, प्लीज पास द बुक, क्या करना है आपको, प्लीज पास द बुक, इट मीन्स प्लीज पास दैट स्पेसिफिक बुक, आपको क्या करना है, वो स्पेसिफिक बुक को पास करना है। आई एम नॉट सेइंग प्लीज गिव मी, हम लोग कैसे होते हैं, प्लीज गिव मी अ बुक बोलते हैं, मतलब मुझे वो बुक दे दो, अभी कौन सा बुक यहाँ पे स्पेसिफाई किया क्या, नहीं। सो अगर आपको मालूम है कौन सा बुक पास ऑन करना है, सो यू विल बी राइटिंग प्लीज पास द बुक, क्या करोगे आप, प्लीज स्पेसिफिक बुक के बारे में बात करोगे, तो प्लीज पास द बुक, ओके। यहाँ तक क्लियर है, इट मीन्स बिफोर यूजिंग द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक कमोडिटी और स्पेसिफिक प्लेस, अभी यहाँ पे गार्डन, गार्डन इट इज अ प्लेस, गार्डन इट इज अ प्लेस, कमोडिटी बुक होगा, डोर होगा, कमोडिटी बुक होगा, डोर होगा, दीज आर द स्पेसिफिक कमोडिटीज, ये क्या है, स्पेसिफिक कमोडिटी है। सो कमोडिटी और प्लेस अगर स्पेसिफिक है, मालूम है, तो क्या यूज करना है आपको, द यूज करना है। रूल क्लियर है, समझ में आया रूल क्या किया हम लोगों ने, ओके। चलो आगे जाते हैं, चलो अभी रूल 2 एंड रूल 3 यहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफिकली यूज किया हुआ है। चलो देखो रूल 2 क्या बता रहे हैं यहाँ पे, रूल 2 जो है, रूल 2 बोल बात कर रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस इज रिपीटेड ट्वाइस, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में आपको 2 बार इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको कितने बार इंफॉर्मेशन दी गई है, 2 बार इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड इट इज गिविंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो सेकंड टाइम इंफॉर्मेशन जो देगा तो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। इट मीन्स देखो, फर्स्ट टाइम यू आर जस्ट मेंशनिंग दैट ऑब्जेक्ट, second time second time you are giving special information about that object, सेकेंड टाइम आप क्या दोगे उसके बारे में, स्पेशल इंफॉर्मेशन दोगे, देन आर्टिकल क्या यूज करना है आपको, आपको आर्टिकल यूज करना है द। समझ में आ रहा है क्या बोलता हूँ, एक ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट हो रहा है, या फिर एक ऑब्जेक्ट के बारे में 2 बार आपको इंफॉर्मेशन अगर मिल रहा है, तो इट मीन्स यू आर गिविंग अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आप इसको क्या बोलोगे, तो ये है जो आपका, इस यहाँ पे आपको द यूज करना है। देखो एग्जांपल देखते समझ में आएगा, आई सॉ अ बर्ड, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला, आई सॉ अ बर्ड, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम रेफर किया है बर्ड को, सो मैं बोल रहा हूँ अ बर्ड, मैंने एक पंछी देखा, मैंने एक पंछी या फिर एक पक्षी मैंने देखा, यहाँ पे मैंने एक पंछी एक पक्षी मैंने देखा है, ठीक है। आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, द बर्ड वॉज ब्यूटीफुल, द बर्ड वॉज ब्यूटीफुल, वो बर्ड क्या है,
ब्यूटीफुल है. सो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक बर्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट specific bird. Initially I was talking in a generally. I saw a bird. So इसलिए मैंने a यूज किया. मैंने एक पंछी देखा, एक देखा, सिंगुलर नाम है, so a यूज किया. Now I am again talking about that bird, but now I am some specifying some information. क्या information है? The bird was beautiful. I was talking about that bird who is very very beautiful. वो क्या पंछी है? It's very beautiful. He is very beautiful. It means initially when you talk about a specific thing, I use a, but when I mention some details about that object or that subject, I will use article. तो मैं क्या यूज करूंगा? the article यूज करूंगा. यहाँ पे we are talking about that specific word. Okay. रमा गिव मी अ बुक. रमा ने मुझे क्या दिया? एक किताब दी, एक मुझे बुक दिया, एक पुस्तक दिया. रमा गिव मी अ बुक. अभी उस बुक के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं यूज करूंगा द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक बुक एंड दैट बुक इज गिवन बाय द रमा और दैट बुक इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. वो किताब क्या है? बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है. सो द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. सो यहाँ पे वो जो किताब है, वो जो बुक है, उसके बारे में आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ओके. So if there is a if you mention specific information about a certain thing, okay, then you will use the article the. If you use if you mention any of the object twice and if you are giving a specific information about that object, तो आप क्या करोगे? आप the article को यूज करोगे. जैसे अभी एग्जांपल और ले सकते हैं. I saw a girl. I saw a girl. और आगे बोलूंगा मैं the girl was. The girl अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं. The girl was और the girl is और या फिर आप the girl was बोल सकते हो. The girl was pretty. मैंने एक लड़की देखी and that girl was pretty. अभी ये लिखने में प्रॉब्लम है. The girl was pretty. I saw a girl. So I am specifically I am talking about normal girl, but I am mentioning details about that girl. So I will use I saw a girl. और वो लड़की कैसी थी? तो वो लड़की जो थी वो क्या थी? प्रीटी थी. शी वॉज प्रीटी. वो कैसी है? प्रीटी है. ओके. समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लियर है अब तक? एवरीथिंग इज क्लियर होपफुली. चलो अभी जाते हैं यहाँ पे रूल 3 पे जाएंगे. इफ एनी स्पेशल इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ नाउन. अगर आपको नाउन के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया होगा तो यू विल अगेन यूज द आर्टिकल. मतलब अब आप बोले फर्स्ट रूल और ये रूल सेम ही है. ऑलमोस्ट सेम है, बट फर्स्ट रूल में वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस आल्सो, बट यहाँ पे नॉर्मल नाउन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक वन. देखो स्पेशल नाम की बात नहीं कर रहा मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन. देखो यहाँ पे आई सॉ द गर्ल इन ब्लू. अभी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैंने पहले स्टार्टिंग किया था और बर्ड से, बाद में मैंने उसके बारे में रिपीट इन्फॉर्मेशन दिया. सो डबल यहाँ पे जो इट वाज रिपीटेड ट्वाइस. राइट. यहाँ पे देखो एक ही बार रेफरेंस आ रहा है, सिंगल टाइम रेफरेंस आ रहा है गर्ल का. बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कौन सा आर्टिकल यूज किया? आई हैव यूज्ड द आर्टिकल. ओके. एंड व्हाई द? बिकॉज आई हैव गिवन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट इट. आई सॉ द गर्ल इन ब्लू. इन ब्लू का मतलब है उसने ब्लू कलर के क्लोथ्स पहने. इट मींस आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल हु हैज वन ब्लू क्लोथ्स. ब्लू कलर के क्लोथ्स उसने पहने हुए हैं. समझ में आ रही है? दिस इज द बुक दैट आई वांटेड. यहाँ पे क्लियर कट बताया गया कौन सा बुक है जो मुझे चाहिए था. सो दिस इज द बुक. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक विच आई नीडेड और विच आई वांटेड. दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हर. मैं उसको यहाँ पे मिला था. दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हर. मैं यहाँ पे उसको मिला था. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ जनरल प्लेस. The apples on our tree are not yet ripe. अभी आप यहाँ पे मिलेगा आपको प्लूरल फॉर्म.
दिस इज नॉट अ सिंगुलर वन, दिस इज अ प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। द एप्पल ऑन द ट्री आर नॉट येट राइप। राइप का मतलब क्या होता है? राइप का मतलब, राइप का मतलब है वो पके नहीं है अब तक, खाने लायक नहीं है, ठीक है। राइप का उल्टा क्या आता है? राइट का अपोजिट, राइप का अपोजिट क्या आता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ राइप? फल पके नहीं है। अभी लॉजिकली इट्स नॉट राइप का मतलब है, मैं एंटोनिम पूछ रहा हूँ। मालूम है किसी को? देखो इसका राइप का जो उल्टा आता है ग्रीन। अब तक वो जो फ्रूट्स है वो क्या है? ग्रीन है। हम लोग बोलते ना कि कच्चे है। सो द एप्पल इज राइप मतलब है एप्पल पक गया, एंड एप्पल इज ग्रीन इट मीन्स अब तक वो पका नहीं है। याद रखना है आपको, राइप के उल्टा क्या आएगा? तो ग्रीन आएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? रूल्स ये दोनों क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे अभी। चलो देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है कुछ कुछ कि देखते हो। अभी पहले अपना रूल 4 कर लेते हैं, बाद में मैं ये जो नीचे का विंडो दिख रहा है ऊपर लेके जाता हूँ। रूल 4 क्या बोलता है देखो। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द ओनली थिंग्स और इटर्नल थिंग्स। द ओनली थिंग्स और इटर्नल थिंग्स। द ओनली थिंग्स का मतलब होता है जो दुनिया में एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है। मतलब हम लोग बोलेंगे द ओनली थिंग्स का मतलब है एकमेव। मतलब क्या? द ओनली थिंग्स, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इट्स लाइक द ओनली थिंग, इट मींस देयर इज नो अदर प्लेस, देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट लाइक दैट थिंग। इट्स लाइक द ओनली थिंग। ओके। और इटर्नल थिंग्स का मतलब होता है, अगेन इटर्नल थिंग्स मतलब ऐसी चीजें जो करोड़ों सालों से हम लोग यहाँ पे है, लाइक दे आर हियर in this world, in this universe for the numerous years. eternal। देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। द सन, एक ही सन है हम लोग को, एक ही सन है, राइट। जो भी हमारा गैलेक्सी है, वी हैव द ओनली वन सन। अभी दूसरे गैलेक्सी में होंगे वो छोड़ दो, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर गैलेक्सी ओनली। So that's why the sun, it's like a eternal thing. It is there for the numerous years. It is there for the crores of years. That's a numerous years. Eternal thing. द मून, अर्थ हैज ओनली वन मून। अर्थ का एक ही मून है। आप ये मत बोलो कि सर जो बाकी प्लैनेट्स है उसको ज्यादा मून होते हैं, मुझे खाली अर्थ की बात करनी है। अर्थ हैज ओनली मून, सो दैट्स व्हाई द मून आएगा, एक ही मून है। अभी वो, अभी आपका चांद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर चांद, दैट इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी। हम लोग अपने के पीपल हैव अ हैबिट टू कॉल देयर वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स एज माय as a chand ka tukda, so that is a different thing, that is not the moon, that is a different part. Okay, so the moon, it means we are talking about that the moon, the real satellite of earth. The sky, एक ही sky है, right. The ताजमहल, it is like the only thing। पूरे दुनिया में कितने ताजमहल है? सोच क्या रहे हो? एक ही तो है। और इस जो वंडर्स है दुनिया में, 7 वंडर्स जो भी है, वो आपको दैट इज द ओनली वन थिंग, द ताजमहल। द रेन, अभी आप बोलोगे कि सर रेन को द क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेनफॉल इन अ स्पेसिफिक मंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेनफॉल। बारिश तो सब जगह पे सेम ही होता है ना, दैट्स व्हाई द रेन। ओके, ये हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वर्ड द रेनफॉल। सो द रेन याद रखना है आपको, बहुत बार यहाँ पे मिस्टेक्स होता है, पीपल, वो लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। सो द रेन। द विंड, एक ही हवा है। द वर्ल्ड, एक ही वर्ल्ड है। सो बिफोर ओनली थिंग्स और बिफोर इटर्नल थिंग्स आपको क्या यूज करना है? आर्टिकल द, आर्टिकल आपको यूज करना है, ये आपको याद रखना है। सो अगर ऐसी चीजें तो दुनिया में एक ही है, आपको द आर्टिकल यूज करना है। इटर्नल थिंग्स है, देन ऑल्सो यू हैव टू यूज द आर्टिकल। ओके, चलो अगर देखो 5वां रूल देखते हैं।
अभी फिफ्थ रूल जो है अबाउट द द आर्टिकल द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। याद है ना सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होता है एक, as soon as, sorry, as beautiful as clever as, right, so beautiful as, पॉसिबल लिखा मैंने, सॉरी, पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री, किसके बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव डिग्री। बाद में कौन सा होता है, कंपैरेटिव डिग्री, यू आर टॉलर देन हिम, कंपैरेटिव डिग्री, यू आर टॉलर देन हिम, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री, यू आर टॉलेस्ट इन द क्लास, ओके, यू आर द टॉलेस्ट इन द क्लास। So if you are using a superlative degree, and then you have to use the article the। देखो यहाँ पे he is the tallest boy, important है ये noun का होना, बिकॉज वो क्या है, टॉलेस्ट, क्या है, टॉलेस्ट बॉय है, सो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, द गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अ क्लास, इन अ स्कूल। सो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर इट इज अज्यूम ना कि ये बॉय होगा, ये गर्ल होगी, लेकिन अगर यहाँ ये देखो, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है एक्सेप्शन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्सेप्शन दिख रहा है। सो ये क्या बता रहा है एक्सेप्शन, इफ नाउन इज एब्सेंट, अगर नाउन जो है वो एब्सेंट है, जस्ट अ मिनट, इफ नाउन इज एब्सेंट, अगर नाउन एब्सेंट है, इट मीन्स ये जो बॉय, ये गर्ल, अगर ये एब्सेंट है, तो आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री डू नॉट यूज द, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री डू नॉट यूज द। मतलब देखो, रमेश इज मोस्ट हैंडसम, क्या हैंडसम, क्या हैंडसम बॉय, ऑब्वियसली बॉय होगा, बट यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, बॉय नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे लिखता बॉय, रमेश इज मोस्ट हैंडसम बॉय, तो मुझे क्या यूज करना पड़ता, मुझे यूज करना पड़ता रमेश इज द मोस्ट हैंडसम बॉय। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला है, खाली हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रमेश इज हैंडसम। सो यहाँ पे ये जो द वर्ड है वो नहीं आएगा, द वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। सो सो यहाँ पे बॉय वर्ड मिसिंग है, तो आप यहाँ पे द वर्ड यूज नहीं करोगे। देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल भी सेम लेते हैं। इफ इट इज लाइक ही इज टॉलेस्ट, सो यहाँ पे ही इज द टॉलेस्ट नहीं बोलते हम लोग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज टॉलेस्ट, वो उसका हाइट बड़ा है, ही इज टॉलेस्ट। मैं यहाँ पे द आर्टिकल यूज करता क्या, नहीं करता। सो क्या याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल कब यूज होगा, व्हेन आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री देयर इज नाउन, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री देयर इज नाउन, वहां पे नाउन अगर होगा तो ही आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। सो आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री अगर नाउन है तो आप इसको यूज कर पाओगे, अगर नाउन नहीं है तो यूज नहीं करना। यहाँ पे समझ में आया अब तक ये क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। एक बार ये 5 हो गए, 5 रूल शॉर्ट में रिवाइज करते। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो सबसे पहला रूल बताया था कि यूज, इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी। तो स्पेसिफिक कमोडिटी होगा शट द डोर, एंड इज इन द गार्डन, प्लीज पास द बुक। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स, आपको द आर्टिकल यूज करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डोर एंड इज इन द स्पेसिफिक गार्डन, प्लीज पास दैट स्पेसिफिक बुक। सेकेंड रूल बताया था, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अगर उसका रिपीटिशन हो रहा है, इफ इट इज रिपीटेड ट्वाइस, इफ इट इज रिपीटेड ट्वाइस, तो क्या करोगे आप उसको। और सब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इट इज गिविंग स्पेशल इंफॉर्मेशन, इट इज गिविंग स्पेशल इंफॉर्मेशन, तो आपको आर्टिकल द यूज करना है। यहाँ पे आई सॉ अ बर्ड, और अब इस बर्ड के बारे में मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम गिविंग अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट बर्ड, द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। रूल 3 देखो,
इफ एनी स्पेशल इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द नाउन, अगर आपने नाउन के बारे में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन दी गई है, देन वी विल यूज आर्टिकल द। जैसे आई सॉ द गर्ल इन अ ब्लू, इट मीन्स दैट गर्ल इज इन अ ब्लू ड्रेस। ओके, दिस इज द बुक दैट आई वांट, मीन्स दिस बुक, ये जो है वो मुझे चाहिए था। दिस इज नॉट अ रैंडम बुक, दिस इज द बुक विच आई नीडेड और विच आई वांटेड। This is the place where I met her. This is the place where I talked to her, where I met her for the first time. I'm talking about the specific place. This is the apples on our tree are not yet ripe. Here we are using a plural form, but we are talking about which apples, these apples belongs to us because these apples are on our tree. मेरे इस पे है. So that's why we will use the apples and they are not ripe. अब तक पके नहीं है वो, राइट। राइप का उल्टा क्या बताया था मैंने? राइप का उल्टा बताया था, राइप का एंटोनिम बताया था आपको मैंने अभी, ग्रीन बोलते हैं, याद रखो आपने, ठीक है। देन रूल 4 बता रहे हैं, यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ ओनली थिंग्स और इटर्नल थिंग्स इन द वर्ल्ड। ऐसी चीजें जो दुनिया में एक ही है या फिर ऐसी चीजें दुनिया में एक ही है लेकिन करोड़ों सालों से है, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द ताजमहल, द रेन, ये सारी चीजें दुनिया में एक ही है या फिर ये सारी चीजें दुनिया में करोड़ों साल से है। एंड द लास्ट रूल जो आपको बताया था यहाँ पे, दैट इज अ आर्टिकल द, इट इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। He is the tallest boy. Geeta is the most beautiful girl. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। इफ नाउन इज एब्सेंट, नाउन मतलब कौन सा, बॉय, गर्ल, एनिमल, ये सारे अगर मिसिंग होंगे तो आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री आपको डू नॉट वर्ड यूज नहीं करना है। सो आप इफ नाउन इज एब्सेंट देन आपको डू नॉट वर्ड नहीं, सॉरी, द वर्ड को यूज नहीं करना है, द आर्टिकल को यूज नहीं करना है। सो जैसे एग्जांपल होगा रमेश इज मोस्ट हैंडसम, सो यहाँ पे मैं द यूज नहीं करूंगा। या फिर जैसे ही इज टॉलेस्ट, तो द यूज नहीं होगा। गीता इज ब्यूटीफुल, गीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो द यूज नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये 5 रूल्स क्लियर है। नेक्स्ट सेशन हम लोग का जब होगा तो हम लोग वहां पे तभी नेक्स्ट और रूल्स करेंगे। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, सो आई विल ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम पॉसिबल रूल्स इन दिस आर्टिकल्स। आई होप आई नीड अ सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इट्स लाइक you are paying something in a future, you will be paying in a future, but फिलहाल तो ये जो है हम लोग का फ्री सेशन है। सो आई होप दैट you will like the session। कुछ यहाँ पे मुझसे अगर फॉल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, then let me know here because sometime this is I am also doing it for the first time। okay, I know that I have to do it professional, but कुछ हो गया है mistakes, क्या हो रहा है, then please let me know। okay, some kind of mistakes may be done, so